السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ نفرت انگیز تقاریر کو قطعی ناقابل برداشت قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے حال ہی میں انتہائی سخت رویہ اختیار کیا اور مرکزی حکومت کو اس سلسلے میں خصوصی کمیٹی بنانے کی ہدایت دی، مگر اس کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہریانہ کے نوح فساد اور ہریانہ میں کشیدگی کے باوجود پلول میں نہ صرف بھگوا مہا پنچایت کی اجازت دی گئی بلکہ اس میں مسلمانوں کے خلاف کھل کر زہر افشانی ہوئی ہے، انگلی اٹھانے پر ہاتھ کاٹ دینے کی دھمکی دی گئی ہے اور یہ اعلان کیا گیا کہ نوح میں 28 اگست سے ایک بار پھر یاترا نکالی جائے گی۔ سرو ہندو سماج کے بینر تلے منعقدہ سرو جاتیہ مہا پنچایت میں مطالبہ کیا گیا کہ نوح کے ضلع کی حیثیت ختم کی جائے اور اس علاقے کو گائے کے ذبح سے پاک بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی انتظامیہ سے مطالبہ کیا گیا کہ نوح کے ہندوؤں کو اسلحہ کا لائسنس آسانی سے فراہم کیا جائے۔ ایک بار پھر نوح سے یاترا نکالنے کا اعلان کرتے ہوئے وی ایچ پی لیڈر دیوندر سنگھ نے دھمکی دی ہے کہ ریاست بھر کے لوگ نوح میں 28 اگست سے ایک بار پھر یاترا کریں گے، چاہے انتظامیہ اس کی اجازت دے یا نہ دے۔ اس کے ساتھ یہ بھی اعلان کیا گیا کہ یاترا ہریانہ کے نوح نلہار جہاں فسادات ہوئے تھے اس سے ہی دوبارہ شروع کی جائے گی اور پھر وہاں سے فیروز پور جھڑکا سے ہوتے ہوئے سنگمار مندر تک جائے گی۔ دیوندر سنگھ نے مطالبہ کیا کہ نوح میں مرکزی دستوں کی 4 بیٹالینوں کو مستقل تعینات کر دیا جانا چاہیے۔ وہاں پنچایت اس سے قبل نوح ضلع کے کیرا گاؤں میں منعقد کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، مگر کشیدگی کو دیکھتے ہوئے اس کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سندیپ مور نے اس بات کی تصدیق کی کہ بعد میں پلوال میں مہا پنچایت کی اجازت دی گئی۔ ریاست کرناٹک کے مختلف مٹھوں کے ہندو رہنماؤں نے حکومت کرناٹک سے مطالبہ کیا کہ انسداد ذبح گاؤ اور مخالف تبدیلی مذہب قوانین کسی بھی وجہ سے منسوخ نہ کیے جائیں۔ مختلف مٹھوں کے رہنماؤں کی بنگلور میں منعقدہ کانفرنس میں اس سلسلے میں متفقہ قرارداد منظور کی گئی۔ مختلف مٹھوں کے سربراہوں نے سنت سمیلن میں حصہ لیا جس کا اہتمام بنگلورو کے ملیشورم میں واقع ایک مٹھ میں وشوا ہندو پریشد نے کیا تھا۔ وی ایچ پی نے یہ بات بتائی۔ اس نے کہا کہ کانفرنس میں مختلف مسائل جیسے گائے کی ذبح، تبدیلی مذہب، لو جہاد، ہندو غیر منقسمہ خاندان، ماحولیات اور ہم آہنگی پر تبادلہ خیال ہوا۔ 2 قراردادیں متفقہ طور پر منظور ہوئی۔ 77ویں یوم آزادی کے موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج 14 اگست کو قوم سے خطاب کریں گی۔ راشٹرپتی بھون میں یہ بات بتائی۔ ان کا یہ خطاب شام 7 بجے سے آکاشوانی کے سارے نیٹ ورک اور دوردرشن کے سارے چینلز پر ہندی میں نشر کیا جائے گا، بعد ازاں اسے انگریزی میں ٹیلی کاسٹ بھی کیا جائے گا۔ ہندوؤں کی ایک غیر سیاسی تنظیم ہندو جن جاگرتی سمیتی نے ملک بھر میں اسٹار بکس کے بائیکاٹ کی اپیل کی ہے۔ ہندو جن جاگرتی سمیتی نے اپنے والنٹیئرز کو اسٹار بکس کے آؤٹ لیٹس کو بھیجا اور ویڈیوز بنائے جن میں انٹرنیشنل سیلسمین یہ کہتے ہوئے سنے جا سکتے ہیں کہ وہ صرف حلال گوشت استعمال کرتے ہیں۔ ایچ جے ایس کے ترجمان رمیش شنڈے نے کہا کہ کوئی بھی ادارہ جو حلال اشیاء فروخت کرتا ہے اس کو ایک اسلامی ادارہ سے صداقت نامہ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ یہ فنڈز مشتبہ مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ شنڈے نے کہا کہ کسی بھی صورت میں یہ نامناسب ہے کہ غیر مسلموں پر حلال گوشت کا لزوم عائد کیا جائے۔ ہندو جن جاگرتی سمیتی گزشتہ کئی مہینوں سے حلال اقتصادیت کے خلاف مہم چلا رہی ہے۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس سابقہ ٹویٹر پر حلال صداقت نامے کو اقتصادی جہاد سے موسوم کرتے ہوئے بائیکاٹ اسٹار بکس کا ٹرینڈ شروع کیا گیا۔ بھارت میں ٹاٹا کنزیومر پروڈکٹس لمیٹڈ کی اس میں 50% شراکت داری ہے۔ سابق وزیر قانون کپل سبل نے بھارتیہ نیائے سنہتا بل کو غیر دستوری قرار دیتے ہوئے الزام لگایا کہ حکومت انگریزی دور کے قوانین ختم کرنے کی بات کر رہی ہے، لیکن اس کی سوچ یہ ہے کہ وہ ایسے قوانین کے ذریعے ڈکٹیٹرشپ مسلط کرنا چاہتی ہے۔ راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ 3 بل واپس لیں جنہیں تعزیرات ہند 1860، ضابطہ فوجداری 1898 اور ہندوستانی شواہد قانون 1872 کو جگہ لینے کے لیے لیا گیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اگر ایسے قوانین حقیقت بن گئے تو ان سے ملک کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا۔ کپل سبل نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ این ڈی اے حکومت نو آبادیاتی دور کے قوانین منسوخ کرنے کی بات کر رہی ہے، لیکن وہ ایسے قوانین کے ذریعے ملک میں آمریت مسلط کرنا چاہتی ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسے قوانین بنائیں جن کے تحت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز، مجسٹریٹ، سرکاری عہدوں، سی اے جی اور دیگر سرکاری عہدیداروں کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ سینئر ایڈوکیٹ نے کہا کہ میں ججوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ چوکس رہیں۔
एनसीपी सरबराह शरद पवार ने कहा कि इनकी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, अगरचे के बाद बहिख्वा इन्हें आमदा करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के संगोला में सहाफियों से बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि बीजेपी के साथ किसी भी तरह की रफाकत एनसीपी की सियासी पॉलिसी में फिट नहीं होती। उन्होंने कहा कि एनसीपी के कौमी सदर की हैसियत से मैं ये वाजे कर रहा हूं कि मेरी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला निरुत्तम मिश्रा ने कहा है कि रतलाम जिले में कुछ लोगों ने जिन्होंने मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर इस्लाम पर काबिल एतराज़ पोस्ट डालने वालों पर कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए नारे लगाए थे, इनके खिलाफ सख्त नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये वाक़या 9 अगस्त की रात को पेश आया, जहां मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का एक बड़ा ग्रुप रतलाम के दीन दयाल नगर थाना हल्के के तहत आने वाले एक पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुए और इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया, जिसने इंस्टाग्राम पर इनके मजहब के खिलाफ काबिल एतराज़ मवाद पोस्ट किया था। रतलाम के एडिशनल एसपी राजेश खाके ने कहा कि मुसलमान लोग एक सोशल मीडिया पोस्ट पर नाराज़ हो गए और पुलिस चौकी पर जमा होकर इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा करने लगे। बाद में ये बताया गया कि पुलिस चौकी के बाहर कुछ मुजाहिरीन ने मुबैना तौर पर सर तन से जुदा का मुतनाज़ा नारा लगाया था। मुबैना नारों का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शेयर किया गया। दीवार को काबिल एतराज़ पोस्ट तक रसाई हासिल करने में कामयाबी नहीं मिली और ना ही ये आज़ादाना तौर पर मुतनाज़ा नारे वाले वीडियो की सदाकत की तस्दीक कर सकता है। इसके बाद एक सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर दाखिला निरुत्तम मिश्रा ने कहा कि नारा लगाने वाले मुलजिमीन को गिरफ्तार किया जाएगा और इनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिसकी वजह से ये नारे लगाए गए थे, सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया गया था, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का उन्होंने कुछ नहीं कहा। इससे साफ जाहिर होता है कि मुल्क में इस्लाम मुखालिफ, मुसलमान मुखालिफ नारे कहे जा सकते हैं, लेकिन नारों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले मुसलमानों के खिलाफ ही कार्रवाई होगी। यौम आज़ादी के मौके पर दिल्ली पुलिस के साथ तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों ने लाल किले के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के इंतजाम को चाक और चौबंद कर दिया है। इस साल आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ 15 अगस्त को G20 की झलक भी देखने को मिलेगी। हर साल यौम आज़ादी के पेश नज़र लाल किले के इर्द गिर्द एक नाकाबिल तस्खीर हिफाजती हिसार बनाया जाता है। यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया के मौके पर लोगों की तादाद में मज़ीद इजाफा हो जाता है। इसके पेश नज़र जहाँ एक तरफ लाल किले का मुहासरा किया जा रहा है, वहीं यमुना में पुलिस कमांडोज को तैनात किया जा रहा है ताकि दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जा सके। हिफाजती इंतजाम के हवाले से बात की जाए तो लाल किला और वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी के लिए 2 माह पहले से तैयारियां की जा रही है, जो अब आखिरी मरहले में है। शुमाली ज़िले के डीसीपी सागर सिंह कलेसी ने बताया कि लाल किले की फसील से दिल्ली की सरहद तक ठोस इक़दाम किए गए हैं। फौज के जवान लाल किले के करीब मुसलसिल गश्त कर रहे हैं। इसके अलावा यमुना में भी हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। फाशिज्म बड़े आंदोलन के बगैर खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन समाजी, इक़्तिसादी और सियासी तीनों सतह पर हमें इस फाशिज्म के खिलाफ लड़ना होगा। आज मुल्क में हालात जितने भी संगीन हो, इनसे मुकाबला करना और इन पर काबू पाकर हमें आगे बढ़ना होगा। CPIML के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य ने ये बातें जगजीवन राम रिसर्च इंस्टीट्यूट में AIPF के जरिए मुनक़िदा एक मुज़ाकरे से खिताब करते हुए कही। भट्टाचार्य ने कहा कि आज मुल्क में आज़ादी से कब्ल जैसे संगीन हालात हैं, हर तरफ अदम मसावत हैं जो रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। मुल्क में तानाशाही है और तानाशाह खुले तौर पर इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है इसका असर 1000 साल तक बाकी रहेगा। उन्होंने कहा कि तानाशाह को अवाम अवतार समझने लगे हैं, जो मुल्क की सालिमियत के लिए काफ़ी ख़तरनाक है। मुल्क के कवानीन को अंग्रेज़ों के कवानीन बताकर इसमें तरमीम की जा रही है, जिससे अवाम को चौकन्ना रहना चाहिए और आफात से कब्ल आफात से बचाव का इंतज़ाम करना चाहिए। भट्टाचार्य ने कहा कि 2024 का इंतख़ाबात फाशिज़म के खिलाफ मुकाबला है। सिर्फ बड़े आंदोलन से तानाशाही के खिलाफ हम ये जंग नहीं जीत सकते हैं। इसके लिए हमें हर सतह पर जद्दोजहद करनी होगी और समाजी, इक़्तिसादी और सियासी सभी सतह पर तहरीक चलानी होगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त हम पर एक नई गुलामी थोपी जा रही है, जिसके खिलाफ हमें पार्टी और तंजीमों से क़तई नज़र मुत्तहिद होकर लड़ना होगा। मरकज़ी वज़ीर अमित शाह ने अपोजिशन इत्तेहाद पर तंज किया है। उन्होंने इसे पुरानी बोतल में पुरानी शराब करार दिया। उन्होंने दावा किया कि ये इत्तेहाद इन कायदीन का ग्रुप है जो 12 लाख करोड़ के करप्शन में मुलविस है। अमित शाह ने अपोजिशन कांग्रेस पर यह कहते हुए तनकीद की कि इसके दौर में हिंदुस्तान की मईशत दुनिया में 11वें मुकाम से आगे नहीं बढ़ सकी, जबकि वज़ीर आज़म मोदी ने एक झटके में 5वें मुकाम पर पहुंचा दिया।
अमित शाह गुजरात के जिला गांधीनगर के मानसा टाउन में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के रीजनल सेंटर का संग बुनियाद रखने के बाद खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूपीए और कांग्रेस इन कायदीन का ग्रुप है जो 12 लाख करोड़ रुपयों के करप्शन में मुलविस है। इन लोगों ने अब अपना नाम बदल लिया है। तेलंगाना के वज़ीर के चंद्रशेखर राव के हाथों अक़लियती उम्मीदवारों में 1 लाख रुपए इमदादी स्कीम के चेक्स की तकसीम की तारीख में तब्दीली की गई है। चीफ मिनिस्टर 16 अगस्त के बजाय 19 अगस्त को नुमाइश मैदान में हैदराबाद जिले के 15 असेंबली हल्क़ाजात के तहत मुंतखब 4000 अफराद में 1 लाख रुपए के चेक्स तकसीम करेंगे, जबकि अजला में 6000 अक़लियती उम्मीदवारों में चेक्स की तकसीम अमल में आएगी। स्कीम के तहत पहले मरहले में 10,000 अफराद को इमदादी रकम जारी की जाएगी। वज़ीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि जारिया माह के अवाखिर में मजीद 10,000 अफराद में इमदादी रकम के चेक्स जारी किए जाएंगे। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अक़लियतों की तरक्की के लिए ठोस इक़दाम किए हैं। बैंकों में छुट्टियों के पेश नज़र चेक्स की दस्तियाबी में दुश्वारी के सबब 16 अगस्त की तकरीब 19 अगस्त को मुनक़िद की जा रही है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव 19 और 20 अगस्त को अजला, मेदक और सूर्यापेट का दौरा करेंगे। चीफ मिनिस्टर दफ्तर की जानिब से जारी करदा प्रोग्राम के मुताबिक केसीआर 19 अगस्त को मेदक जिला कलेक्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के दफातर का इफ्तिताह करेंगे। वो मेदक जिला BRS ऑफिस की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम देंगे। बाद में वो पार्टी कारकुनों से खिताब करेंगे। चीफ मिनिस्टर 20 अगस्त को सूर्यापेट जिले का एक रोज़ा दौरा करेंगे। नए जिला कलेक्ट्रेट का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद वो जिला सुपरिटेंडेंट पुलिस के दफ्तर का आगाज़ करेंगे। वो सूर्यापेट जिले में कायम किए जाने वाले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की इमारत का इफ्तिताह करेंगे और नए पार्टी ऑफिस की इमारत का आगाज करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने मैनेजिंग एडिटर सियासत जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां और इनकलाबी शायर गदर को खिराज अकीदत पेश करके इनकी अवामी खिदमत की याद ताज़ा की। बोयनपल्ली में गांधी आइडियोलॉजी सेंटर में मुनक़िदा प्रजा कोर्ट के मौके पर तशहीरी कमेटी सदर नशीन मधु याचकी गौर ने ताज़ियती करारदाद पेश की। उन्होंने जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां से अपनी देरीना रफ़ाक़त का जिक्र किया और कहा कि वो हमेशा कमज़ोर तबक़ात को इंसाफ दिलाने में सरगर्म रहे। तेलंगाना तहरीक में इनका गैर मामूली रोल रहा। गदर से गहरी दोस्ती थी और अवामी मसाइल पर तकरीबन हर हफ्ते मुशावरत होती। मधु याचकी गौर ने जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां के इंतकाल को अवामी तहरीकात का भारी नुकसान करार दिया। मधु याचकी गौर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने प्रगति भवन में गदर को दाखिले की इजाज़त नहीं दी, जिसका इन्हें काफ़ी सदमा था। गदर ने तेलंगाना तहरीक के दौरान केसीआर की मुकम्मल तायीद की थी, लेकिन तश्कील तेलंगाना के बाद इन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। इस मौके पर 2 मिनट की खामोशी भी मनाई गई। यौम आज़ादी के पेश नज़र हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने किला गोलकुंडे के रानी महल में 15 अगस्त को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ट्रैफिक पाबंदियों का ऐलान किया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रामदेवगुड़े से गोलकुंडा किला जाने वाली सड़क आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी और इस रास्ते पर CA गोल्ड, एपिंग और बी ब्लू कार पास रखने वालों को ही जाने की इजाज़त होगी। सिकंदराबाद, बंजारा हिल्स, मासाब टैंक और मेहदीपट्टनम से आने वाले कार पास रखने वालों को मशवरा दिया गया कि रेती बोली नानाल नगर जंक्शन से लंगर हाउस फ्लाईओवर, टीपू खां ब्रिज, रामदेवगुड़ा जंक्शन, मक्की दरवाजे से गोलकुंडा किला पहुंचे। रेड कार पास रखने वालों को शेखपेट नाला, टोली चौकी, 7 गुंबद, बंजारा दरवाजे से गोलकुंडे की तरफ आने का मशवरा दिया गया। कार पास रखने वालों को यानी अवाम को लंगर हाउस फ्लाईओवर से फतेह दरवाजे के जरिए आने की इजाजत होगी। इलाके बंडलागुड़े में पेश आए शेख सईद बावजीर के कत्ल केस में पुलिस ने 3 अफराद को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीमों ने अहमद बिन हजब, जिसने पहले वार किया था, इसको पहले ही हिरासत में ले लिया है और दीगर 2 मुकामी अफराद को भी हिरासत में लिया गया। 11 अगस्त को इलाके बंडलागुड़े के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स मुफ्तेम बिल्डिंग की पहली मंजिल पर शेख बावजीर का अहमद बिन हजब ने कत्ल किया था और वहां से फरार हो गया था। मकतूल के वालिद शेख अब्दुर्रहमान बिन सईद बावजीर ने पुलिस से की गई एक शिकायत में अहमद बिन हजब के अलावा दीगर 5 नाम बशमुल अहमद सादी, अब्दुल्ला सादी, साकिन जलपल्ली, जो मजलिस पार्टी के चेयरमैन बताए जाते हैं, इनके अलावा साले सादी, इकबाल बिन खलीफा और सालम बिन खलीफा के मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद किया था, जिस पर इंस्पेक्टर बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन शाकिर अली ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इसी दौरान 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। मकतूल बावजीर के जुलूस जनाजा और नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद ने शिरकत करते हुए पुलिस के इस रवैये के खिलाफ नाराज़गी जाहिर की थी, क्योंकि मकतूल ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। कई सियासी कायदीन ने बावजीर के इंतकाल पर इनके घर पहुंचकर इनके अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया।